एवरीवन, यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी सीरीज में हम एक और वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने क्या क्या किया है, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन एंड पावर लॉस। क्या आपको पता होना चाहिए? सबसे पहली चीज, करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज I इक्वल टू Q by T. Electrical potential, amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to a given point, V is equals to W by Q. Ohm's law, which says that V equal to IR in mathematical terms. And resistance, which is the ratio of potential difference across the ends of a conductor to the current flowing through it. The formula is R equal to V by I or ml over A N E square. Electrical power. So what we have considered is a conductor in which current I is flowing from A to B. The potential difference across AB will be equal to V is equal to VA minus VB, considering VA is greater than VB क्योंकि current इसमें A से B flow कर रहा है. That means potential of VA is greater than VB. तो potential difference across AB होगा VA minus of VB. Now amount of charge traveling from A to B in time delta t होगा delta q is equal to I into delta t, because I is equal to dq by dt होता है. Now potential energy of charge at A होगा UA is equal to delta q into VA. Potential energy of charge at B होगा UB is equal to delta q into VB. Change in potential energy होगा delta U is equal to UB minus UA. इसमें हमने values put की, delta q common निकला और आया डेल्टा क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए. वी बी माइनस वी ए होता है माइनस वी के बराबर, तो ये मेरे पास आ जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई वी डेल्टा टी. Now, if charges move without collision through the conductor, their kinetic energy would also change so that the total energy is unchanged. So according to the law of conservation of energy, kinetic energy is the negative of potential. That is, it will be equal to Vi delta t and that will be greater than 0 क्योंकि kinetic energy वैसे भी positive ही होती है. अच्छा, when charges move freely through the conductor under the action of electric field, their kinetic energy increases. But on the average, charge carriers do not move with acceleration, but with a steady drift velocity because of the collisions with ions and the atoms during transit. ठीक है? So during collision, the energy is gained by the charges is shared with the atoms. The atoms vibrate more vigorously. That is, the conductor heats up. सिंपल भाषा में कहूँ, जब आपका चार्ज मूव करेगा फ्रीली थ्रू द कंडक्टर अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी. लेकिन ऑन एन एवरेज जो चार्ज कैरियर्स है उनका कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, एक कांस्टेंट या स्टेडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है क्योंकि वो कोलाइड करते रहते हैं. इस कोलिजन के दौरान क्या होता है, जो एनर्जी गेन की थी चार्ज ने वो शेयर हो जाती है एटम्स के साथ, उससे एटम वाइब्रेट करता है विग्रसली और कंडक्टर हीट अप कर जाता है. ठीक है. अच्छा, अब अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी, that will be equal to delta W is equal to VI delta T, because एनर्जी और वर्क सेम ही होते हैं इसीलिए ये सेम ही टर्म लिखी गई है. ठीक है. नाउ पावर डिसिपेटेड P is equal to delta W by delta T. इसमें वैल्यूज रखी तो ये मेरे पास आता P equal to VI, या इसे लिखा जा सकता है I square R या V square upon R. ठीक है. Where P is the power loss or ohmic loss in a conductor of resistance R with current I. Note, it is this power which heats up, for example, the coil of an electric bulb to incandescence, radiating out heat and light. इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन एंड पावर लॉस. इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिट की जाती है पावर स्टेशन से हमारे घरों और फैक्ट्रियों में थ्रू ट्रांसमिशन केबल, और पावर लॉस को मिनिमाइज करना बड़ा ज़रूरी है. तो हमने कंसिडर किया हमारे पास एक है डिवाइस डी जिसे हमें पावर पी डिलीवर करनी है थ्रू ट्रांसमिशन केबल्स, और इसकी रेजिस्टेंस है आर सी. लेट वी बी द वोल्टेज अक्रॉस डी और आई का करंट उससे फ्लो कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू वी अपॉन पी. नाउ पावर डिसिपेटेड और वेस्टेड इन द कनेक्टिंग वायर होगी पी सी इक्वल टू आई स्क्वायर आर सी. इसमें आई की वैल्यू रखी तो हमारे पास निकलता है पी सी इक्वल टू पी स्क्वायर आर सी अपॉन वी स्क्वायर.
अच्छा, अगर मुझे पीसी को रिड्यूस करना है तो कनेक्टिंग वायर्स में से जो करंट जाना चाहिए वो बहुत हाई वोल्टेज पे जाना चाहिए। क्यों? बिकॉज पीसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो अगर वी ज़्यादा होगा तो पावर डिसिपेटेड या वेस्टेड कम होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एट सच वोल्टेज इज नॉट सेफ। इसीलिए क्या किया जाता है, दूसरी साइड पे एक डिवाइस लगाया जाता है जिसे हम ट्रांसफार्मर कहते हैं, जो कि क्या करता है, वोल्टेज को कम कर देता है एक सुटेबल वैल्यू फॉर यूज के लिए। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी और बोर्ड क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, टू अनइक्वल resistors are connected in series across a battery, then the potential difference across each resistor is the same, current in the smaller resistor is larger, potential difference across bigger resistor is greater, power dissipated in both resistors is same। तो इसका आंसर है सी, potential difference across bigger resistor is greater। क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, जिसमें R ज़्यादा होगा वहाँ पोटेंशियल भी ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, n resistors, each of resistance R are connected, A in series and B in parallel. Each combination is then connected to a source of EMF E. The ratio of heat produced per second in the two cases will be n is to 1, 1 is to n square is to 1 or 1 is to n square। तो आंसर है 1 is to n square। कैसे? देखिए, सीरीज में आपका क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है n टाइम्स ऑफ R। करंट आपका होगा E अपॉन आर इक्विवेलेंट, दैट इज ई अपॉन एन आर। हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड कितनी निकलेगी, आई स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट, दैट इज ई स्क्वायर अपॉन एन आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। पैरेलल में देखें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपकी होती है आर बाय एन, और हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड यहाँ पे निकलेगी वी स्क्वायर बाय आर इक्विवेलेंट, दैट विल गिव एन ई स्क्वायर अपॉन आर। इक्वेशन नंबर 2। 1 and 2 से हम heat produced in series to heat produced in parallel निकालें तो वो 1 is to n square आता है। Next question, two resistors R1 and R2 of 4 ohm and 6 ohm are connected in parallel across a battery. The ratio of power dissipated in them P1 is to P2 will be 4 by 9, 3 by 2, 9 by 4 या 2 by 3। तो इसका आंसर होगा 3 is to 2। क्यों भाई? P1 by P2 होगा V square upon R1 divided by V square by R2, that will give R2 by R1, that is 3 by 2 की वैल्यू। अब हमने यहाँ ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ किया, क्योंकि पैरेलल में यूज़ किया और पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, इसीलिए हमने V स्क्वायर बाय R का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। तो हमारा P1 is to P2 कितना निकला, 3 is to 2। Next question, the element of a heater is rated P and V if it is connected across a source of voltage V by 2, then the power consumed by it will be P 2P, P by 2 या P by 4। तो आंसर है इसका P by 4। रीज़न देखें तो इनिशियल पावर आपका होगा P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, फाइनल पावर होगा P डैश इज इक्वल टू वी डैश स्क्वायर बाय आर। वी डैश की जगह V by 2 रखा तो ये मेरे पास आता है V स्क्वायर बाय 4R and that can be written as P by 4। Next question, two bulbs are rated P1V and P2V if they are connected, first case in series and second case in parallel across a supply V. Find the power dissipated in the two combination in terms of P1 and P2। ये एक और बार बोर्ड में पूछा गया, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। आइए आंसर करते हैं इसे। तो पहली चीज, as heating elements are operated at the same voltage, so we can write the formula for resistance as R is equal to V square by P। इससे मैं लिख सकता हूँ रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बल्ब R1 is equal to V square by P1 और रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड बल्ब R2 is equals to V square by P2। पहला केस है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस RS is equal to R1 plus R2। आर एस की जगह हमने लिखा वी स्क्वायर अपॉन पी एस इज इक्वल टू आर वन की जगह वी स्क्वायर बाय पी वन प्लस आर टू की जगह वी स्क्वायर बाय पी टू। इसमें वी स्क्वायर कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा। सो 1 बाय पी एस इज इक्वल टू 1 बाय पी वन प्लस 1 बाय पी टू, जिसे हम लिख सकते हैं पी एस इज इक्वल टू पी वन पी टू अपॉन पी वन प्लस पी टू। अब आते हैं दूसरे केस पे जो कि है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए पैरेलल में आपका होता है 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू। इसमें हमने क्या किया, आर पी की जगह लिखा वी स्क्वायर बाय पी पी, आर वन की जगह वी स्क्वायर बाय पी वन और आर टू की जगह वी स्क्वायर बाय पी टू। तो इसे लिखा जा सकता है पी पी, दैट इज पावर इन पैरेलल इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स
P and Q have their resistances in the ratio of 1:2. They are connected in series across a battery. Find the ratio of the power dissipation in these bulbs. So हम जानते हैं power dissipated का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर. दोनों बल्ब सीरीज में कनेक्टेड हैं तो करंट सेम रहेगा. सो द रेशियो ऑफ पावर डिसिपेटेड इन द टू बल्ब्स P1 by P2 आपका होगा आई स्क्वायर R1 अपॉन आई स्क्वायर R2, दैट इज R1 by R2. एंड R1 by R2 किस रेशियो में था 1:2. सो हम कह सकते हैं P1:P2 is equal to 1:2. Next question, the potential difference applied across a given resistor is altered so that the heat produced per second increases by a factor of 9. By what factor does the applied potential difference change? So हीट प्रोड्यूस पर सेकंड का फॉर्मूला होता है H इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, या हम लिख सकते हैं इसको V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ H फॉर कांस्टेंट रेजिस्टेंस R. अब क्वेश्चन के हिसाब से H इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 9, और अगर अंडर रूट ऑफ 9 देखेंगे तो इससे सीधा पता चलता है कि V इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 3. Next question, define the term power loss in a conductor of resistance R carrying a current I. In what form does the power loss appear? Show that to minimize the power loss in the transmission cables connecting the power stations to home, it is necessary to have the connecting wires carrying current at enormous high values of voltage. तो सबसे पहली चीज power loss, it is the electrical energy lost per second in the resistor. दूसरी चीज पावर लॉस अपियर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तीसरा हमें शो करना है, तो हमने कंसिडर किया हमारे पास एक डिवाइस आर टू विच पावर पी इज टू बी डिलीवर्ड वाया ट्रांसमिशन केबल्स हैविंग अ रेजिस्टेंस आर सी. Let V be the voltage across R and I be the current through it. So we can write I is equal to P upon V. Now power dissipated in the cable PC is equal to I square RC. इसमें values रखी, so we find that PC is inversely proportional to V square. So now energy transmission at high voltage minimize the power loss because PC is inversely proportional to V square. Next question, Sushil is in the habit of charging his mobile and then leaving the charger connected through the mains with the switch on. When his sister Asha pointed it to him, he replied there is no harm as the mobile had been disconnected. Asha then explained to him and convinced him how the energy was still being wasted as the chargers were continuously consuming energy. Answer the following question. What measures in your view should be adopted to minimize the wastage of electrical energy in your household? Second, imagine an electrical appliance of 2 watt left connected to the mains for 20 hours. Estimate the amount of electrical energy wasted. तो भाई पहली चीज आपको measures, पहला high power devices should be used only when required. दूसरा all electrical devices should be switched off when not in use. दूसरे पार्ट के लिए हमें पावर गिवन है 2 watt जिसे मैंने किलोवाट में कन्वर्ट किया, टाइम गिवन है 20 hours. Now amount of electrical energy wasted E is equal to P into T, that is 0.04 kilowatt hour. इसे मैं कन्वर्ट करता हूँ जूल्स में, तो मेरा आंसर निकलता है 144,000 जूल्स. Next question, a 100 volt battery is connected to the electric network as shown. If the power consumed in the 2 ohm resistor is 200 watt, determine the power dissipated in the 5 ohm resistor. तो ये हमारा सर्किट डायग्राम है, इसे हम अपनी तरह से बनाते हैं और हमने यहाँ नेमिंग कर दी ABCDEFG तक की. ठीक है भाई. अब यहाँ पे हमें पता है P इक्वल टू होता है I स्क्वायर R. पावर हमें गिवन है, आर हमें गिवन है 2, तो उससे हमारा आई निकल गया 10, यानी कि इसमें 10 है. अब अगर इसमें 10 है, इसका मतलब क्या निकला, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10 है. ठीक. नाउ करंट फ्लोइंग थ्रू द 2 ओम रजिस्टर कितना है 10 एम्पेयर का. ठीक है. नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल अक्रॉस इट. पोटेंशियल आपका होगा आई इंटू आर का फॉर्मूला. आई आपका हो गया 10, आर हो गया 2, तो ये निकल गया 20. अब 100 में से 20 हो गया यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ और इस पूरे में कितना निकलेगा 80. सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी एफ या सी ई कितना निकलेगा, जैसा कि मैंने बताया 80. देखो भाई यहाँ 80 लिख दिया है, यहाँ भी अंडरस्टूड है, सी में 80 ही मिलेगा. नाउ व्हाट इज द करंट अक्रॉस बी एफ.
करंट निकालना है तो V बाय आर का लगाए, V मेरे पास है 80, R है 40, तो यहाँ निकल गया 2। तो देखो ये टोटल था 10, यहाँ गया 2, इसका मतलब यहाँ क्या जाएगा, 8 जाएगा टोटल में। ठीक है ना, व्हाट इज द करंट अक्रॉस CE, जैसा कि मैंने बताया 8, तो यहाँ टोटल में 8 है, यानी कि इस पूरे में भी 8 है और इसमें भी 8 है। बड़ा आसान हो गया। फिर करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर कितना निकलेगा, 8, जैसा कि मैंने बताया। मुझे निकालना है पावर डिसिपेटेड इन द 5 ओम रजिस्टर। सो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर का फॉर्मूला लगाया, I की जगह आ गया 8, R की जगह 5, इसको सॉल्व किया तो ये निकला 320 वाट। Next question, a heating element is marked 200 volt 630 watt. What is the value of the current drawn by the element when connected to a 210 volt DC source? So current का formula होता है I equal to P upon V, P की जगह 630, V की जगह 210, so I get the answer 3 ampere. Now is the time for acknowledgement. Google, Bing, NCERT सबका धन्यवाद, जहाँ से जो इमेज वगैरह ली गई है, I'm really thankful to them. And do watch the next video which is on EMF of a cell.